one by one chapter. The Honorable Prime Minister Modi ji, आपको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. आप देश का प्राइम मिनिस्टर है, आप सीनियर है एज में. जो सीनियर है, आप ही तो कल बोला उनको इज्जत करना चाहिए. हम तो इज्जत करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन हमको I am in a opposition, I have to criticize also. Then this is my role. That's the reason people of the Srirampur parliamentary constituency has chosen by a margin of 1,75,000 votes. बहुत ज्यादा मोदी जी का ऊपर से, बहुत ज्यादा. तो मोदी जी, why are you having so much hatred, vindictive attitude to the opposition parties? Why? In a democracy, opposition party will always criticize the ruling party. And that is the foundational job of the opposition party. Why we will hate all opposition leaders all the time, or we will spread hatred towards the opposition or to the minority? I never heard, sir, sorry, for long 10 years I have never heard from Modi ji any sweet words, any soft words towards the opposition is concerned. Any soft word, any sweet words. Never I have heard any praise by the Honorable Prime Minister to the opposition. Never. Never any praise to the chief ministers who are in the non-BJP state. Nowhere I have ever heard it, sir. With a great pain I am saying so. You, in our state, you hate our chief minister Mamata Banerjee. In Tamil Nadu, you hate Mr. Stalin. In Delhi, you hate Arvind Kejriwal. In Jharkhand, you hate Hemant Soren. In Maharashtra, you hate Uddhav Thackeray. In Uttar Pradesh, you hate Akhilesh Yadav. All the over. Karnataka, Sitaramaya. Anyway, and that is the reason. Exactly today, time has come. No. If you are arrogant, I don't mind. But today, time has come to oversee yourself. To oversee this arrogancy, this hatred, this vindictiveness have downgraded the popularity of Mr. Narendra Modi in India itself. You must appreciate that. This is the point which you have taken. Sir, what is called stable government with clear majority? What is called? Since BJP has lost 63 seats and not having majority on the basis of the strength of every political parties, you wish to redefine the term stable government. You are rewriting the term stable government. Fantastic procedure. आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार बोला था. खेल शुरू हो गया था सर. शुरू हुआ ना. खेल तो बहुत सा खेल है सर. चू कित कित भी खेल है. चू कित कित में चू धरा 400 में. कित 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 कितना हुआ? 240. वो गेम में भी हारा गया. सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे. एक बार देखने से साइड से आपको ही देख. सर हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे. गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर. आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में. Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in मन की बात और in दिल की बात. मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब. पब्लिक there is no warranty. गारंटी है लेकिन वारंटी नहीं है. ऐसा लगता है कि शैतान का वेद पाठ, when devils can quote scripture for their own purpose. कलकत्ता में एक व्यक्ति था जो बोलता था, आमी चोरी करी, मद्यपान करी,
समस्यावाड़ीते हो जाई करी किंतु आमी आमार कैरेक्टरटा ठीक करे रेखेछि। वो संविधान को पकड़ करके इतना बवंडर करने वाले संविधान का कितना बार हत्या किया, इसको सोचना चाहिए। और संविधान और लोकतंत्र, उनके मुंह में ये शब्द शोभा नहीं देता है। इसलिए ये बिल्कुल इस प्रसंग में विरोध करते हैं। क्यों? इसलिए विरोध करते हैं कि संविधान को विरोध करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के, उनको प्रणाम करके और संविधान निर्माता को प्रणाम करके राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण शुरू किया। ये उनको सहन नहीं होता है, क्योंकि अंबेडकर दलित वर्ग से आते हैं और दलितों का अपमान करने वाले अंबेडकर को कितना बार अपमान किया, पराजित करने के लिए कितना दुष्चक्र किया, कितना दुष्कर्म किया। वो अंबेडकर का सम्मान माननीय मोदी जी ने ही किया। पंचतीर्थ का निर्माण हो, अंबेडकर का जन्म जयंती पालन हो, ये सब ये काम मोदी जी ने किया। ये उनको सहन नहीं होता है। सर, ये महाकुंभ के बारे में राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया। ये महाकुंभ हमारा सनातन आत्मा का, भारत का आत्मा का प्रतीक है। 144 साल बाद ये दुर्लभ महाकुंभ आया। सर, कुंभ मेला जैसा कि मिनी भारत का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व का लोग इसमें आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ न केवल एक मेला है, ये त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम पर ये जो मेला होता है, ये संत गंगा, ज्ञान गंगा और अध्यात्म गंगा का त्रिवेणी भी सूक्ष्म रीति से इधर होता है। लाखों साधु संत, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, हर एक संप्रदाय के, शैव शाक्त गाणपत्य पंचरात्र वैखानस वेदांती, सर्व प्रकार का संप्रदायों का लोगों का समागम होता है। ज्ञान गंगा का निरंतर प्रवाह चलता है। सर, हमारा राष्ट्र एक सनातन राष्ट्र है। कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा इसका आविर्भाव नहीं हुआ है। पतित पावनी गंगा जैसा हिमालय की गिरी गुफा से निकल करके कहाँ कल कल छल छल निनादिनी, कहाँ भीमकांत गर्जन में सारा धरित्री को प्रकंपित करते हुए वही पार्श्वस्थ भूमि को शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता प्रदान करती आती है और अंत में सागर में पतित होती है। ऐसा हमारा सनातन राष्ट्र चिंतन, हमारा वैदिक सनातन ऋषियों की ध्यान से निकलता है और ये राष्ट्र सनातन है। ये राष्ट्र कभी प्राचीन नहीं होता है। ब्रजेंद्र नाथ सील महोदय ने लिखा है, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। ये प्राचीन है, परंतु आज भी हिमालय जैसा सनातन अनंत तारुण्य से अक्षय तेज में भारत माता विद्यमान है। सर, यह भारत का प्रतीक है हमारा कुंभ मेला। भारत का अध्यात्म का प्रतीक है, अतीत का गौरव का प्रतीक है, भारत का भविष्य का महिमामय चित्र इसमें समुद्भासित होता है। ये वही भारत है जो वैदिक ऋषियों से लेकर के ऋषि दयानंद तक, बुद्ध से लेकर के नागसेन तक, चैतन्य से चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से प्रतापादित्य तक और समर्थ स्वामी रामदास से रामकृष्ण विवेकानंद तक, राजा अश्वपति और अश्वघोष से श्री अरविंद तक, करोड़ों ऋषि मुनि साधु संत योद्धा राष्ट्र नायकों का पवित्र पदरज में पवित्र करत हुआ है। इस पावन भूमि को हम बंधन करते हैं। इसका बिंदु बिंदु भूमि यज्ञ भूमि है। लेकिन जिन्होंने इस भूमि को बेचा, जिन्होंने अपना स्वार्थ के लिए देश को तोड़ा, कोई राजनीतिक, भौगोलिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक आधार पर नहीं है, सांप्रदायिक अधिकार पर जिन्होंने इस देश को तोड़ा, देश के साथ गद्दारी किया है, उन्होंने आज संविधान की बात करते हैं। इनका क्या अधिकार है? सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भाग नहीं हुआ, बंटन हुआ। कच्चा तिलू, वेरुवादी, 3 बीघा किसने किया? एक ही खानदानी ने किया। सर, आज ये संविधान अखंडता की बात करते, देश को तोड़ने वाला देश जोड़ने का नाटक करते। ये नाटक जनता को भली